ओम शांति। आज बाबा की 31 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। यह पढ़ाई में कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। तो बाबा बोलছেন पढ़ाई मिस करा जाबे ना। और এই কদিন আগে বাবা বললো না বরদানে, প্রকৃতি জিত হতে হবে। তো প্রকৃতি জিত হতে গেলে কি করতে হবে? প্রকৃতিকে দাস বানাতে হবে। কিভাবে? চাহে ঠান্ডা গরম শীত বৃষ্টি যাই আসুক, কিন্তু সাধনাতে কোনো ফরক আসবে না। তবে হবে প্রকৃতি জিত, তবে প্রকৃতি মালিক মনে করবে, তাই না? प्रश्न, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? কিভাবে শিব বাবার হৃদয়ে জয় করা যাবে? उत्तर, बाप के दिल को जीतना है। बाप के दिल को जीतना है। तो जब तक संगम युग है, तो जब तक संगम युग है, तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। जब तक संगम युग है, तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो। अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है, अगर कोई पाप कर्म हो जाता है, तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ। तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ, तो हल्के हो जाएंगे, तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं, बाप जो शिक्षा देते हैं, यही उनकी दया, यही उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है। बाप जो शिक्षा देते हैं, यही उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय, तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर कृपा करो, स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर, ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। तो কি করে শিব বাবার হৃদয় জয় করব? সব মাতা পিতাই বসে আছেন না, বাচ্চা কি করলে মা বাবা খুশি হয়? বাবা বলছেন যদি বাচ্চা সব সত্যি কথা মাতা পিতাকে বলে, তবে মাতা পিতা খুশি হয়, তাই না? কিছু লুকাবে না। যদি ভুলভাল হয়েও গেছে, তাও মাতা পিতাকে জানাবে, তবে তো মাতা পিতার আশীর্বাদের অধিকারী হবে, তাই না? আর বাবা কত সুন্দর বলছেন, নিজের উপরে চালচলন উপরে অ্যাটেনশন দিতে হবে। এমন কিছু ভুল করব না যে আমাকে বাবার কাছে বলতে লজ্জা হবে, বাবার ছবির দিকে তাকাতে লজ্জা করবে। এরকম কোনো ভুলই করব না যে আমাকে শোনাতে হবে, তাই না?
বাবা বলছেন বাবা যে শিক্ষা দিচ্ছেন সেটা আমাদের উপরে কৃপা করছেন, তাই না? যেরকম অনেক সময় বাড়ি ঘরে কি হয়, বাচ্চাগুলো মা বাবার কথা শুনবে না। কিছু ভালো কথা বললে কি বলবে, হ্যাঁ চুপ করো তো, অনেক শুনেছি আর শুনবো না, তাই তো? তাতে কি হয়, ক্ষতি হয় না ভালো হয়? ক্ষতিই হয়, তাই না? তো বাবাও বলছেন যে যদি শিক্ষা পাচ্ছি, বাবা শিক্ষা দিচ্ছেন, তো সেটা আমার উপরে কৃপা হচ্ছে, তো সে শিক্ষাকে আশীর্বাদ বলে নিতে হবে। যদি না নিতে পারি মানা নিজের ক্ষতি হয়ে যাবে, তাই না? ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सभी दुख में आ जाते हैं और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं, फिर जहाँ दुख है वहाँ सुख का नाम निशान नहीं। तो কলিযুগে আছে দুঃখের দুনিয়া আর সত্যযুগ আছে সুখের দুনিয়া। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं, जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं। वो कौन सी जगह है? एक है सतयुग और दूसरा है कलियुग। यह तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ही। अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। শিওর দুঃখের দুনিয়া শেষ হতে চলেছে, না বাড়তে চলেছে, না শেষ হতে চলেছে? অতি হলে তো ইতি হবে না। কালকে এই একটা ভিডিও শুনছিলাম, কোনো থাকে না অনেকেরা অ্যাস্ট্রোলজি প্রেডিকশন করে, তো বলছিল এখন এমন প্রভাব আসছে যে গ্রহের প্রভাব হিসাবে সবার ভিতরে রাগটা বাড়বে, নেতাগুলোরও মাথা গরম হবে, তো বাড়ি ঘরে লোকজনেরও মাথা গরম হবে, তাই না? তো বিশেষ 2025 সাল মাথা গরমের পেপার খুব আসবে, তাই না? নিজেদেরও হবে। তো এই জন্যে কিসের উপরে বিশেষ অ্যাটেনশন? এবার মাথা গরম হলে কি হয়, ঝগড়া হবে, মারপিট হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সারা দুনিয়া এখন কোন দিকে যাচ্ছে? দুঃখের অতীতে। কেন? মাথা গরম মানেই ঝগড়া ঝামেলা অশান্তি মানে দুঃখ, তাই না? তো বাবা বলছেন अभी दुख का समय पूरा होता है। এত দুঃখ হবে, এত লড়াই ঝগড়া হবে, লাস্টে সবাই কি বলবে, দুধ আর কোনো লড়াই ঝগড়া চাই না, তাই না? শান্তির দুনিয়া চাই। और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है, তাই না? তবে তিনি আরেকটা ভালো কথা বলেছেন যে যত ঝামেলা অশান্তি বাড়বে, যত রাগ ঝগড়া যুদ্ধ বাড়বে, অত মানুষের মধ্যে কি আসবে? বৈরাগ্য আসবে। আর যত বৈরাগ্য আসবে অত আধ্যাত্মিকের দিকে ঝুঁকাব আসবে, তাই না? তো 2025 যেমন দুঃখের ঝগড়ার, তাই না, মারপিটের অতি, সেরকম আধ্যাত্মিকতাও লোক খুঁজবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন तो सतयुग की तैयारी हो रही है। हम अभी इस पतित छिछी दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं, তাই না? সবাইকে জানতেই হবে যে দুনিয়া সত্যযুগ আসছে। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। ऐसा नहीं जो सुख देता है वही दुख भी देता है, नहीं, सुख बाप देते हैं और दुख माया রাবণ देता है। গতকালই বাবা বলছিলেন না, রাবণ তার ঘর নেই, এই জন্যে ও কী করে, সব এর ভিতরে ওর ভিতরে আতঙ্কবাদীর মতন ঢুকে ঘর বানায়, তাই না? তো বাবা বলছেন उस दुश्मन की एफिजी हर वर्ष जलाते हैं, दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खलास हो जाता है, তাই না? একেবারে
परमात्मा राम एसेছেন কি করবেন উনি? রাবণের দুনিয়া, হ্যাঁ, রাবণের 10 মাথা একদম শেষ করে দেবে দুনিয়া থেকে। 5 विकार ही सबको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं, तुम यहाँ बैठे हो। এমনি শাস্ত্রেও বলে না রামায়ণে যে রাবণ মরল কিসে? কোন অস্ত্রে মরল রাবণ? बोले ब्रह्मास्त्र, ताई ना। तो बाबा कहते बच्चे जानते हैं जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खलास हो जाता है। तो रावण किसे मरबे? ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मा बाबा चलेও এসছে, কাজ শুরু হয়েও গেছে, অনেকটা হয়ে গেছে। তো রাবণের যাবার সময় এসে গেছে। 5 विकार ही सबको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं, तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाएं। तो की बुद्धिते থাকবে? বাবার কাছে যেতে হবে, পরম ধামে। না দুনিয়া খুব ভাল লাগছে, না যেতে হবে বাবার কাছে? আর ভাল লাগছে না দুনিয়া? হ্যাঁ, পাক্কা ভাল লাগছে না? না আর একটু তো চাই, আর 4-5 বছর অন্তত, বেশি না হলে নাকি? तो रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे, कभी सुना है रावण को परम पिता परमात्मा कोई कहते हो? कभी भी नहीं। कई समझते हैं लंका में रावण था, बाप कहते हैं यह सारी दुनिया लंका है। कहते हैं वास्को डी गामा ने चक्र लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। जिस समय उसने चक्र लगाया उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे, ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी, बिजली अलग चीज है। अब बाप कहते हैं दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना होता है कि स्थापना पालना विनाश। लोकेरा बोले देय ना स्थापना पालना विनाश, बाबा बोलছে ওই রকম না, नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश, তাই না? ঘর ভেঙে দিয়ে কেউ ঘর করবে? ঘর থাকতে ঘর করতে হবে, তাই না? बाद में पालना, यह राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है, वो झूठी बिकारी पतित बनने की पालना है जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसी को दुख नहीं देते। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। देखो क्या बन पड़े हैं। यह तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए, है तो बहुत सहज, सिर्फ अल्प की बात है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो। सब सकाल सकाल शुरू हो जाए ना, तो खुद भी सवेरे उठते हैं, वो कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो। तुम कहेंगे बाप को याद करो। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते, वो फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं, मियाँ बीबी। यह सभी अक्षर भारत में है। परम पिता परमात्मा कहने से शिवलिंग याद आ जाएगा। यूरोपवासी लोग गॉडफादर कहते हैं, भारत में तो पत्थर भीतर को भी भगवान समझ लेते हैं। शिवलिंग भी पत्थर का होता है, समझते हैं इस पत्थर में भगवान बैठा है, তাই না? ভক্তরা তো এটাই ভাবতো না যে শিবলিঙ্গের মধ্যে শিব বসে আছে। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर सामने आ जाता है। पत्थर को भगवान समझ पूजते हैं। पत्थर कहाँ से आता है? पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है, फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसे नहीं होती, पत्थर काट काट कर कान, मुंह, नाक, आँख आदि आदि कितना सुंदर बनाते हैं।
खर्चा बहुत करते हैं। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चे आदि की बात नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं, তাই না? পাথরের প্রতিমা না, চৈতন্য দেবী দেবতা হচ্ছি আমরা। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तब पत्थर की पूजा करते हैं, তাই না? যতই মায়ের সামনে গান করি, জাগো, জাগবে। তো বাবা বলছেন জাগবে তো কোথায় জাগবে? আমাদের ভিতরে জাগবে। चैतन्य हैं तो पूज्य हैं, फिर पुजारी बन जाते हैं। वहाँ न कोई पुजारी होते, न ही कोई पत्थर की मूर्ति होती। दरकार ही नहीं। जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों की रखते हैं। अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी, তাই না? এত সুখে ছিল দেবদেবীরা সত্যযুগে যে না কারোর ছবি রাখলো, না কারোর প্রতিমা বানালো। 33 কোটি দেবদেবী বলা হয়, কিন্তু অত রূপ কোথায় আছে, তাই না? फिर से वही रिपीट होती है। आगे यह ज्ञान चक्षु नहीं था तो जैसे पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है, ज्ञान एक ही है, परंतु उठाने वाले नंबरवार हैं, তাই না? একই রকম বাবা সবাইকে পড়ায়, কিন্তু সারাদিন কতটা মাথায় থাকে, কতটা ধারণ হয়, সেটাতে আবার সবাই नंबरवार হয়ে যায়। तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार बनती है। एक है रुद्रमाला, दूसरी है रुंडमाला, তাই না? এক হচ্ছে শিব বাবার মালা, সেটাতে তো অনেকেরা চলে আসবে। আর এক হচ্ছে রুন্ডমালা মানে বিষ্ণুর মালা, সেটা হচ্ছে বৈজয়ন্তী মালা। एक है ब्रदर्स की और दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर्स की। यह तो बुद्धि में आता है। हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बिंदी मुआफिक हैं। কত বড় আছি আমরা, কত বড় আছি, সাইজ কত বড়, ছোট্ট ছোট্ট বিন্দুর মতন। কাগজে ডট পেন দিলেও যত বড় অত বড়ও না, সেও তো কমসে কম চোখে দেখা যাচ্ছে। বাবা বলছেন একদম ছোট্ট বিন্দু একখানা। गायन भी है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अभी तुम समझते हो, हम आत्मा चैतन्य हैं, एक छोटे सितारे मिसल हैं। तो ছোট্ট বিন্দু তার আলো। বাবা বলছেন এইটুকুই আমরা আছি, কপালে বসে আছি। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है, তাই না? কত ছোট্ট থাকে একদম পোকার মতন, সেই থেকে কত বড় হয়ে গেল। वही आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पाठ बजाती रहती है। इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। यह शरीर ही अच्छा बुरा होने के कारण सबको आकर्षित करता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। यह ज्ञान तुम्हें अभी मिलता है, क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है। पतित होने कारण जो काम करती है वो सभी उल्टा हो जाता है, তাই না? আত্মার বুদ্ধি পতিত হয়ে গেছে, রাবণের বশে এসে গেছে, তাই জন্যে যা করতে যায় ভালো করতে গেলেও উল্টো হয়ে যায়। बाप सुल्टा काम कराते, माया उल्टा काम कराती। सबसे उल्टा काम है बाप को सर्वव्यापी कहना। आत्मा जो पाठ बजाती है वो अविनाशी है, उनको जलाया नहीं जाता, उनकी तो पूजा होती है। शरीर को जलाया जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती तो शरीर को जलाते हैं। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है।
তাই না? আগে আত্মা শরীর ছেড়ে দেবে, তারপরে শরীরটা কি করবে? পচা দুর্গন্ধ বেরোবে, তো শরীরটা পুড়িয়ে দিতে হবে। আর আত্মা চলে গেল এক গর্ভে। आत्मा बिगर शरीर 2-4 दिन भी नहीं रख सकते, তাই না? আত্মার কত পাওয়ার। এক থেকে 2 দিন হয়ে গেলে শরীর পচা গন্ধ বেরোবে, তাই না? দেখার মতন থাকবে না, কেমন অবস্থা হয়ে যাবে। আর আত্মা আছে তো দেখো কত সুন্দর চলাফেরা করছে। तो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, कई तो फिर शरीर में दवाइयाँ आदि लगाकर रख भी लेते हैं, परंतु फायदा क्या? क्रिश्चियन का एक सेंट जेवियर है, कहते हैं उसका शरीर अभी भी रखा हुआ है, उनका भी जैसे मंदिर बना हुआ है, किसी को दिखाते नहीं हैं, सिर्फ उसके पाँव दिखाते हैं। कहते हैं कोई पाँव छू लेता है तो बीमार नहीं होता, पाँव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं, तो समझते हैं उनकी कृपा। बाप कहते हैं भावना का भाड़ा मिल जाता है, তাই না? বাবা বলছে সত্যি পা ছুলে কি আর অসুখ চলে যাবে? খুব ভাবনা থাকে যে সত্যিই হবে, সেটাই শরীর অ্যাকসেপ্ট করে নেয়। निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है, बाकी ऐसे तो ढेर के ढेर वहाँ जाए, मेला लग जाए, बाप भी यहाँ आए हैं, फिर भी इतना ढेर नहीं होते, ढेर होने की जगह भी नहीं है। जब ढेर होने का समय आता है तो विनाश हो जाता है, তাই না? যখন সবাই জানতে পারবে যে ভগবান এসছে, শিব বাবা এসছে, কাজ করেছে, তাই না? অতক্ষণে তো বিনাশ শুরু হয়ে যাবে। यह भी ड्रामा बना हुआ है, তো আমরা কত ভাগ্যবান যে আমরা ভগবানের আসার পরিচয়ও পেলাম, তার ঠিকানাও পেলাম, দেখাও করতে পারলাম, তাই না? তো ভাগ্যবান আছি না? পরে যারা আসবে ওরা তো শুধু শুনবে, পাবে তো কিছুই না। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था होती है, अर्थात तमो प्रधान बन जाता है, तब यह झाड़ चेंज होता है। कितना यह बेहद का बड़ा झाड़ है, পুরো কল্পবৃক্ষ ভিতর থেকে কাণ্ড তো কাণ্ড, শাখা প্রশাখা, পাতা, ফল, ফুল সব পচে গেছে। তো আর কি থাকবে গাছটা, তাই না? ওই জন্যে শিব বাবা এসছে নতুন বীজ লাগাতে, আবার নতুন পাতাগুলোকে, দেবী দেবতা আত্মাগুলোকে তৈরি করতে। पहले वो आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है, কোর্সের বইতে আছে না, শিব বাবা বীজ, তার থেকে দুটো পাতা বেরোলো, শ্রী রাধা শ্রীকৃষ্ণ। तो पहले नंबर में जाना है, नंबर वार आएंगे ना, তো যে পারফেক্ট সবচেয়ে শ্রী রাধা আর শ্রীকৃষ্ণ, সে হচ্ছে প্রথম দুটো পাতা, তারপরে নম্বরবার পুরুষারত অনুসার পাতাগুলো আসবে। सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते, नंबरवार माला अनुसार आएंगे। तो কে কখন পারফেক্ট হলো, প্রতিমা কমপ্লিট হলো, কে প্রথম সাবমিট করলো, সেই হিসাবে নম্বর হবে, তাই না? যে আগে সম্পূর্ণ হলো তার নম্বর আগে, যে সেকেন্ডে হলো তার নম্বর পিছে, তাই না? তো সেইভাবে পরমধামে সিট নির্বাচিত হয়ে যাবে। पाठधारी भी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे, खेल ही बिगड़ जाए, यह खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकती, তাই না? বাবা কদিন আগে মূল্যে চালিয়েছিল, অব্যক্ত মূল্যে রিজার্ভেশন করতে হবে, তাই না? ফার্স্ট ডিভিশনের সিট রিজার্ভ করতে হবে, কেন? যাব তো পরে, সব দাপর যুগী ভক্ত আত্মাদেরকে উদ্ধার করে তো যাবে, তো আগে তো ওরাই চলে যাবে,
যাদের উদ্ধার করব সে তো আগে গেল না, তো আমরা তো পড়েই যাব। তো তাহলে তো আগে গিয়ে পরমধামে ওরা সিট নিয়ে নেবে, তাই না? কিন্তু ওই রকম না, আমরা আগে থেকে রিজার্ভ করে নেব। আর কিভাবে রিজার্ভ হবে? যখন এদিকে সম্পূর্ণ হলে, কর্মাতীত হলে, হিসাব ক্লিয়ার করে দিলে, ব্যাস সিট রিজার্ভ হয়ে গেল, তাই না? তারপরে কাজ সেরে যখন গেলে সিট তো रिजर्व हो गए ना। तो मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए, और सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आती हैं। यह तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है। उन शास्त्रों आदि को पढ़ने से कमाई नहीं होती। बाबा बोलছেন অনেক শাস্ত্র পুরাণ পড়েছি কিন্তু ইনকাম হবে না সেটাতে। বাবা বলছেন বাবার মূল্যি যত পড়ব, কিছু না কিছু বুদ্ধিতে গেল, কিছু না কিছু ধারণ হলো, তো সে এবার জনম জনম সুখ দিতে থাকবে, মানে ইনকাম হতে থাকলো। तो हाँ, कुछ न कुछ गुण अच्छे होते हैं, ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं, सभी निर्विकारी होते हैं। बाप कहते हैं इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, তাই না? দুনিয়াতেও দেখবে যেখানে গীতা মহাভারত শাস্ত্র রাখা থাকবে, তাই না? তো স্নান টান করে শুদ্ধি পবিত্রতা পালন করে তাকে টাচ করবে। এবারও ওদের হিসাবে পবিত্রতা যতটুকু, স্নান করলে পবিত্র হয়ে গেল, তাই না? তো পবিত্র কাপড়, ধোয়া কাপড় পরে নিল, পবিত্র হয়ে গেল, তাই না? কিন্তু কোন ধোয়া কাপড় পরতে হবে, তাই না? আর কোন স্নান করে শুদ্ধি হতে হবে, তবে আসল গীতা পড়তে পারবো, আসল মূল্যি নিতে পারবো, তাই না? দেখো ভক্তরা কত অ্যাকুরেট यादगार पालन করে, তাই না? तो बाबा बोलছেন तुम बच्चों से कई पूछते हैं वहाँ जन्म कैसे होगा। बोलो वहाँ तो 5 विकार ही नहीं, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहाँ विकार की बात नहीं, यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है। कोई कोई तो बाप को आकर सुनाते भी हैं, सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, তাই না? যদি কোনো বড় ভুল হয়ে গেল, বাবাকে বললাম না, লুকিয়ে রাখলাম, তো বাবা বলছেন মিটবে তো কিছুই না, হিসেব দিতে হবে। আর কত হিসেব দিতে হবে? যা করেছি তার 100 গুণা। ভালো করলে বাবা ইন্টারেস্ট দিচ্ছে প্রথম গুণা, আর খারাপ করলে মাইনাস হচ্ছে 100 গুণা, তাই না? আবার যদি বলে দিই তাহলে 100 গুণা মাইনাস হবে না, 1 গুণা মাইনাস হবে, তাই না? তারপরে আবার সেটা মেকআপ করবে। তো ওই জন্যে কোনটাতে লাভ? কিছু ভুল করলাম তো বাবাকে জানিয়ে দেওয়াতে লাভ। 100 গুণা তো মাইনাস হবে না, না আমার জমা খাতা থেকে থাকবে না, 1 গুণা মাইনাস হবে। तो सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं कि कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो बाप को झट बताना चाहिए। बाप अविनाशी वैद्य है, सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे। जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ छिपाना नहीं है, তাই না? একদম শিব বাবার গণেশ কখন হতে পারবো? যখন সত্যিকারে বাবার ভালো সন্তান হব। আর ভালো সন্তান কি করে? মা বাবার কাছে কিছু লোকায় না, তাই না? कोई छिपाते हैं तो बाप के दिल को जीत नहीं सकते। কি বলল বাবা? যদি ভাবি লুকিয়ে রাখবো তাহলে কি হবে? বাবা জানে তো বটেই, বাবার দিল থেকে নেমে যাবে, তাই না? ধরো বাচ্চাটা স্কুলে কাণ্ড করেছে, মা বাবার কাছে রিপোর্ট তো চলেই আসবে, তাই না? মা বাবা তো জিজ্ঞেস করবে কিরে সব ঠিকঠাক ছিল। যদি বাচ্চাটা বলে
হ্যাঁ একদম সব ঠিক ছিল। তখন মা বাবা বুঝে যাবে না যে বাচ্চাটা ডেঞ্জার বাচ্চা আছে, এ কাণ্ড করে এসে বলছে সব ঠিক আছে, তার মানে এর মধ্যে, তাই না, দুষ্ট বুদ্ধি আছে, তাই না? তো বুঝে গেল না মা বাপ যে আমার এই বাচ্চাটা কিন্তু সঠিক তৈরি হচ্ছে না, তাই না? তো বাবারও দিল থেকে সেইভাবে নেমে যাও, তাই না? तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है, स्कूल में आएंगे ही नहीं तो ক্যারেক্টার कैसे सुधरेंगे? मुरली क्लास मिस করব तो কি করে ক্যারেক্টার শুধরাবে? इस समय सबके कैरेक्टर्स खराब हैं, विकार ही पहले नंबर का खराब कैरेक्टर्स है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चों, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी यह गीता का ज्ञान सुना था तो यह सभी बातें समझ में नहीं आती थी। गीतार मध्य लेखाई आछे काम क्रोध लोभ नरक का द्वार, পড়েও যাচ্ছে মানুষ, আবার নরকের দ্বার খুলেও যাচ্ছে। अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं, अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती है कि क्या क्या करते थे। अभी तो बाप शिक्षा देते हैं, তাই না? আগে ভক্তির নামে কি করতাম, হ্যাঁ, এতটা ফুল, এতটা পাতা, এতটা ফল, এতটা শাক, এতটা সবজি, হ্যাঁ, কি করতাম, ভগবানের লাগে এগুলো? তো কি না কি করতাম। সে কি মানুষ আছে যে ওকে কাপড় দিয়ে আরতি করতে হবে, ওকে ফল ফুল মিষ্টি দিয়ে আরতি করতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে দেখো এখন ভাবলে কেমন লাগে না যে কি করতাম। तो अभी तो बाप शिक्षा देते हैं, इसमें दया कृपा বা আশীর্বাদ কি বাত नहीं होती, তাই না? কিসেতে বাবা খুশি হবে? যদি বাবার শিক্ষাগুলোকে আশীর্বাদ মনে করি, তাই না, গ্রহণ করি। खुद पर ही दया কৃপা বা আশীর্বাদ করনি হ্যাঁ, নিজের উপরে আশীর্বাদ করব কিভাবে? বাবার শিক্ষাটাকে অ্যাকসেপ্ট করে, তাই না? बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं, कोई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लेते। বাবা যেটা বলে সেটা যে বাচ্চারা পালন করে তারা তো বাবার হৃদয়ে জয় করে নেয়। कोई तो पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते हैं, আর কেউ তো অবজ্ঞা করতে 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 ধীরে ধীরে বুদ্ধি পাথর হয়ে যায়, তাই না? আউট করতে লাগে না, ধীরে ধীরে আর মজা লাগবে না, রস পাবে না, আনন্দ পাবে না, অটোমেটিক ধীরে 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 সাইড হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে যত বাবার শিক্ষাকে আজ্ঞা বলে মনে করব, আশীর্বাদ বলে মনে করব, অত মজাতে থাকব। तो बाप तो हर बच्चे को एक जैसा पढ़ाते हैं, फिर कोई समय ऐसी गुह्य बातें निकलती है जो पुराना संशय उड़ जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए बाबा की पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए, তাই না? দেখবে সব সময় যদি ধরো আজকে সারা দিন কোনো কথাতে কনফিউজ, তো পরের দিন মুরলিতে বাবা ঠিক গাইড করবে আর সে কনফিউশন दूर हुए जाए। मुख्य है बाप की याद, दैवी गुण भी धारण करने हैं, তাই না? বাচ্চাটা কত সেজে গুজে আছে সেটাও বাবা দেখবে, কত দিব্য গুণ ধারণ করেছে, তাই না? कोई कुछ छिछी बोले तो क्या करना चाहिए? কেউ যদি ছিছি কথা বলে, উল্টো পাল্টা কথা বলে, তো क्या करना चाहिए? सुना अनसुना कर देना चाहिए। हियर नो इविल, ऊंच पद पाना है तो मान अपमान दुख सुख हार जीत सब सहन जरूर करना है, তাই না? मान अपमान निंदा स्तुति हानि लाभ दुख सुख सब সহ্য করতে হয়। बाबा बच्चन बाप कितनी युक्तियां बतलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते हैं, तो वो क्या पद पाएंगे?
বাবা বলেছে হিয়ার নো ইভিল, কেউ বাজে কথা বললে শুনবে না। বাবা কমপ্লেন করছেন বাচ্চারা তো বাবার কথাও শুনে না, ভালো কথা বললে শুনবে না এটা তো বাবা বলেনি, তাই না? বাবা বলেছে বাজে কথা বললে শুনবে না, কিন্তু ভালো কথা বললে তো শুনতে হবে না, সেটাতে তো আমার ভালো হবে। बाप कहते हैं जब तक अशरीरी नहीं बने हैं तब तक माया की कुछ न कुछ चोट लगती रहेगी, তাই না? যেই দেহবানে এলাম কিছু না কিছু গড়বড় হবে আর মায়া থপ্পড় লাগাবে। তো বাবা বলছেন যতক্ষণ পুরো দেহি অভিমানী হয়নি, আত্মিক স্থিতি আর আত্মা দেখার স্থিতি পুরো আসেনি, तो किछु ना किछु चोट लगते থাকবে। बाप का कहना नहीं मानते तो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं, তাই না? বাবা তো আগেও বলেছে इशारे से समझे सो देवता, बोलने पर समझे तो मनुष्य, और बोलने पर भी नहीं समझे, डिसरिगार्ड करे तो वो क्या है? फिर भी बाप कहते हैं बच्चे सदा जीते जागते रहो, তাই না? বাবাকে মানছে না, তাও বাবা কি বলছে? বাবা আশীর্বাদ দিচ্ছে, আচ্ছা বাচ্চে আজকে মানলে না, কালকে অন্তত মানবে, জিয়ে থাকো, বেঁচে থাকো, তাই না? কালকে তো মানবে না, আজকে মানছো না কোনো ব্যাপার না, কালকে তো মানবে, কমসে কম বেঁচে থাকলে তো মানবে। মানে কিসে বেঁচে থাকবে? জ্ঞানে বেঁচে থাকবে, তবে তো মানবে। আজকে হয়তো কোনো কিছু মানতে কঠিন মনে হচ্ছে, কালকে হয়তো সরল মনে হবে। और बाप को याद कर ऊंच पद पाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है, तो सुना अनसुना कर देना है, নাকি এরকম বললো ছাড়বো না, দে ভিড়িয়ে যাও ভালো করে, এরকম। तो बाबा बोलছেন तो क्या करना चाहिए? सुना अनसुना कर देना है। हियर नो इविल, हियर नो इविल। दुख सुख, दुख सुख मान अपमान, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। दूसरा, बाप जो सुनाते हैं, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर, उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है, बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। तो कि बोलो बाबा, কেউ বাজে কথা বললে অনশুনা করবে, কিন্তু বাবা যে শিক্ষাগুলো দেয় সেটাকে কখনো অনশুনা করবে। माया की चोट से बचने के लिए, माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। तो कখন माया जीत हबो, कখন माया जीत हबो?
মায়ার থেকে থাপ্পড় খাবো না যখন आत्मिक स्थिति, তাই না? वरदान, बाप समान रहम दिल बन, बाप समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर, सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले, स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव, मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहम दिल, जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल हैं, जो रहम दिल हैं वही कल्याण कर सकते हैं, जो रहम दिल हैं वही कल्याण कर सकते हैं। अकल्याण करने वाले को भी, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वो मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, वो मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय, वर्तमान समय संपत्ति से भी ज़्यादा, वर्तमान समय संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है, स्नेह की आवश्यकता है। इसीलिए मास्टर दाता बन, इसीलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, इसीलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो। कोई भी खाली हाथ न जाए, कोई भी खाली हाथ न जाए। তো বাবা আজকে একটা বড় কাজ দিয়ে দিয়েছে, হ্যাঁ, যে আমার ভালোই চায় না ওকেও ক্ষমা করতে হবে, ওর প্রতিও স্নেহ রাখতে হবে। হ্যাঁ, তো পেরে যাব, পেরে যাব। তো বাবা আজকে মাস্টার স্নেহের সাগর হতে বলেছে। কঠিন আছে, হ্যাঁ, আমার ভালোই চায় না আর বাবা বলছে ওর প্রতি স্নেহ রাখো, এ তো হ্যাঁ, কিন্তু বাবা বলেছে যখন করতে হবে। আজকে তো বাবা বলে দিল না, বাবার আজ্ঞা মানা মানে বাবার আশীর্বাদ। स्लोगन, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो। तीव्र पुरुषार्थी हब এটা চাই। तो जहाँ चाह है माने যেখানে इच्छा আছে, तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाएगी। যেখানে ইচ্ছা থাকবে সেখানে উপায়ও পাওয়া যাবে। তো
বাবার কাছে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে রাখবে, বাবা কি করে তীব্র পুরুষার্থী হব গাইড করো। বাবা অটোমেটিক প্রত্যেক মুরলিতে গাইড করেও দেবে আর পথ খুলতেও থাকবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। আজকে বিকেলে তো 31 ডিসেম্বর না, তো নিশ্চয়ই বাবা মিলন হবে। আর সবাই যে যার রেজলিউশনও বাবার কাছে রাখবে। বাবা যখন আজকে দৃষ্টি দেবে তখন বাবার থেকে বরদানও নেবে, তাই না? যে যার তো নিশ্চয়ই ভেবেছি না যে নতুন বছরে কি চেঞ্জ করতে হবে, তাই না? বাবা তো অবগুণের লিস্ট করতেও বলেছিল, আর পরিবর্তনের লক্ষ্যও দিয়েছিল বাবা 4-5টে এই গত মুরলিতে, অব্যক্ত মুরলিতে, তাই না? আরও আজকেও সারাদিন ভাট্টি আছে, তো সারা দিনের মধ্যে আরও ভালোভাবে প্ল্যান প্রোগ্রাম করে নেব, তাই না? আর বাবা যখন বিকেলে আসবে, যখন দৃষ্টি দেবে, তখন সে বরদান বাবার থেকে নিয়ে নেব, ঠিক আছে? চলো, ওম শান্তি।